Hello everyone. This is first class of estimating and costing. ये जो क्लास है MP JE एंड AE जो एग्ज़ाम आने वाला है 30 मार्च, एक्सपेक्टेड डेट है 30 मार्च 2026। तो उसके रिगार्डिंग है। ये ऑब्जेक्टिव क्लास है। अपनी। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ये अपना लेक्चर 1 है। इसमें MP AE एंड JE SSC JE से रिलेटेड PYQ एंड अच्छे क्वेश्चन देखने को अब मिलेंगे आपको। सिलेक्टेड क्वेश्चन है काफ़ी एंड बहुत मेहनत से ये सिलेक्ट किए गए हैं। अब जैसे जैसे लेक्चर 1 लेक्चर 2 आता रहेगा इसका, तो देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेक्शन 44 रिफर्स टू। इस सेक्शन जो 44 है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में, ये किससे रिलेटेड है? पेनल्टी फॉर इंटरफेरेंस विथ मीटर, पेनल्टी फॉर इलीगल transmission or use of energy, penalty for malcy costly for wasting energy and theft of energy, या चोरी से रिलेटेड। इसका जो सही आंसर है वो पेनल्टी ऑफ इंटरफेरेंस विथ मीटर्स। इसका ये जो आंसर है ये है पेनल्टी फॉर इंटरफेरेंस विथ मीटर। पेनल्टी फॉर इंटरफेरेंस विथ मीटर। इसमें कुछ और भी देखने को मिलेगा। पेनल्टी फॉर इंटरफेरेंस विथ मीटर्स सेक्शन 44। इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन इंटीग्रिटी मीटर्स का होते हैं। इसमें ये ऑप्शन दिए थे, इंटीग्रिटी ऑफ मीटर्स, एनर्जी मीटर्स आर क्रिटिकल डिवाइस, एनर्जी मीटर्स आर क्रिटिकल डिवाइस यूज टू मेजर the amount of energy consumed individual household or business. Accurate measurement is essential for correct billing and maintaining a balance in the energy supply system. ऐसी कुछ टर्म लीगल है, implication and detection and prevention. The correct understanding the adherence to section 44 are crucial to ensure the accurate energy consumption data, fair billing practices and the overall efficiency of the energy distribution network. If the measured insulation value is more than unity, what value should be taken as maximum working value? If the measured insulation value is more than unity, इंसुलेशन की वैल्यू मोर देन यूनिटी है, तो वाट वैल्यू शुड बी टेकन एज द मैक्सिमम वर्किंग वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 मेगा ओम। इफ़ द मेजर्ड इंसुलेशन वैल्यू, इसका 1 मेगा ओम हो गया। इंसुलेशन रजिस्टेंस जो होता है मेगा ओम में होता है। अब कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, सिस्टम वोल्टेज एंड मिनिमम इंसुलेशन रजिस्टेंस। तो लेस देन 1 kV के लिए 1 मेगा ओम, और अगर सिस्टम वोल्टेज 1 से 35 kV का है तो वोल्टेज इन kV, जैसे 35 kV है तो 35 kV प्लस 1 36 मेगा ओम हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 35 kV है तो 100 मेगा ओम और हाइयर इंसुलेशन रजिस्टेंस। If the measured insulation resistance is more than unity, greater than 1 ohm, the commonly accepted minimum insulation resistance for electrical equipment operating at low voltage less than 1 kV is 1 mega ohm. This is based on industry standard and insulation resistance testing guidelines.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द implication factor used for the determination at maximum current carrying capacity for 11 kV line। 1 kV लाइन के लिए क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूजिंग डिटर्मिनेशन मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी फॉर 11 kV लाइन के लिए। तो इसका जो आंसर है वो 0.9। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 11 kV लाइन के लिए 0.9। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 11 kV लाइन a multiplication factor of 0.9 is typically used। Power factor consideration, most power system operate at typically power factor of around 0.8 to 0.9 depending on load condition। depending on the load condition the factor of 0.9 provides a standard approximation for the system average power factor, ensuring the current capacity is calculated closer operating condition। सिस्टम efficiency and losses क्या होते हैं, an electrical system is not 100% efficient due to losses such as line losses, reactive power losses due to inductance and capacitance in the line। Using 0.9 accounts for these losses to provide a realistic estimate of maximum current carrying capacity। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैक्सिमम 11 kV के लिए 0.9। एज पर IE रूल maximum permissible voltage drop power industrial circuit should not be more than of the declared supply voltage। इसको पढ़ो एक बार अच्छे से, इसका आंसर देने की कोशिश करो। IE रूल, द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन पावर इंडस्ट्रियल सर्किट शुड नॉट बी मोर देन। तो इसका मैक्सिमम जो करके आएंगे वो 12% है, कुछ लोग 10% करके आएंगे, बट इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है 5%। क्योंकि वो कह रहा है एज पर IE रूल मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन पावर इंडस्ट्रियल सर्किट शुड नॉट बी मोर देन डिक्लेयर्ड सप्लाई वोल्टेज 5%। इसका आंसर होगा 5%। IE रूल रिगार्डिंग वोल्टेज ड्रॉप कंसेप्ट। IE रूल 48, insulation resistance between the wiring installation and earth should be such as value that leakage current may not exceed 1 upon 5000 per 0.2% of the full load current। The permissible voltage drop in lighting circuit is 2%। The maximum permissible voltage drop in power industrial lighting के लिए 2%, power industrial circuit should not be 5%। The insulation resistance of any wiring installation should not be less than 1 mega ohm। The earth resistance should not exceed the value of 1 ohm earth resistance। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
At what level of current flow during electric shock death is possible? 1 to 8 मिली एम्पियर, 50 से 100 मिली एम्पियर, 10 to 20 मिली एम्पियर, 20 to 50 मिली एम्पियर। इसका जो करेक्ट आंसर है 15 to 100 मिली एम्पियर। क्या कर रहा है? डेथ की बात कर रहा है वो। तो 15 to 100 मिली एम्पियर, 15 to 100 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में जस्ट फैंट टिंगल नॉर्मल है 1 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर की बात करेंगे तो सिंगल स्लाइड शॉक होगा, डिस्टर्बिंग बट नॉट पेनफुल। 5 मिली एम्पियर तक पेनफुल नहीं है। मोस्ट पीपल कैन लेट गो, हाउएवर स्ट्रॉन्ग इनवॉलेंट्री मूवमेंट कैन कॉज इंजरी। पेनफुल भी नहीं है, इंजरी होने के चांस हैं थोड़े से। 6 to 30 मिली एम्पियर पेनफुल शॉक, मस्कुलर कंट्रोल इज लॉस्ट, मसल वगैरह फट सकती हैं। दिस इज द रेंज वेयर फ्रीजिंग करेंट्स स्टार्ट, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू लेट गो। 50 से 150 मिली एम्पियर पर एक्सट्रीमली पेन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, धड़कन रुक सकती है। सर्वो मस्कुलर contraction, individual cannot go to death is possible। फिर इससे ऊपर का देखने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू जनरल प्रैक्टिस द लैंड रिक्वायर्ड फॉर 400 kV सब स्टेशन, 400 kV सब स्टेशन के लिए कितना लैंड रिक्वायर्ड है? 30 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़। इसका करेक्ट आंसर है 15 एकड़। 132 kV सब स्टेशन के लिए 10 एकड़ है, 220 kV के लिए 25 एकड़ है, 400 kV सब स्टेशन के लिए 50 एकड़ है। हाई वोल्टेज सब स्टेशन HV सब स्टेशन 11 kV, HV सब स्टेशन कितने से कितने तक? 11 kV to 66 kV। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 132 to 400 kV। अल्ट्रा हाई वोल्टेज की बात करेंगे तो एबव 400 kV। तो 132 के लिए 10, 220 के लिए 25 और 400 के लिए 50। इसमें इंडोर सब स्टेशन और आउटडोर सब स्टेशन से रिलेटेड कुछ डाटा दिया है, बात देख लेते हैं। इन सच अ सब स्टेशन द apparatus इज इंस्टॉल्ड विद इन द सब स्टेशन। जो इंडोर सब स्टेशन होता है 11 kV ऑफ रिक्वायरमेंट। 67 ठीक है। आउटडोर की बात करेंगे तो पोल माउंटेड और फाउंडेशन माउंटेड टाइप होता है। पोल माउंटेड टाइप इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पावर लोकेलिटीज बाय यूजिंग सिंगल पोल H और 4 पोल स्ट्रक्चर। फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन है अब 250 kV और एंड 33 kV, 250 kV एंड 33 kV। Which of the following is the first step of any material procurement process? Procurement process, first step of any material
प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, ये क्या होती है? ये होती है, इसमें डिमांड होती है, परचेस ऑर्डर, पेमेंट, सेटलमेंट, मटेरियल इंस्पेक्शन। मटेरियल इंस्पेक्शन हटा दो, मटेरियल आ जाएगा तभी तो इंस्पेक्शन होगा, और जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तो मटेरियल नहीं आएगा। परचेस मतलब खरीदना, तो सबसे पहली चीज़ होती है डिमांड। इट्स डिमांड फर्स्ट स्टेप ऑफ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस में आइडेंटिफाई गुड्स और सर्विस नीड। डिमांड क्या है, सर्विस की नीड क्या है, आइडेंटिफाई गुड्स, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। लिस्ट ऑफ सप्लायर, जितने अपने पास सप्लायर उनकी लिस्ट बनाओ। नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट विद सिलेक्टेड सप्लायर, जो सप्लायर सेलेक्ट किए उनको नेगोशिएशन करो। फाइनलाइज द परचेस ऑर्डर, ऑर्डर को फाइनलाइज करो। रिसीव इनवॉइस एंड प्रोसेस पेमेंट, टोटल बिल मतलब रिसीव इनवॉइस एंड पेमेंट का प्रोसेस पता करो। डिलीवरी एंड ऑडिट ऑफ द ऑर्डर, मेंटेन एन एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉइस, इतना इनवॉइस में था वो भी सब है कि नहीं। Select the option that is true regarding the following two statements. Labeled 1, assertion A and reason are open tenders are invited by public advertisement. Open tenders are invited by public advertisement, सही बात है। Any contractor who is willing to undertake the work and who is the request finance and equipment to complete the work satisfactorily is allowed to submit the offer। ये बात भी सही है, बट बात तो दोनों सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ओपन टेंडर है इनवाइटेड बाय पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, ओपन टेंडर होते हैं वो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट में भेजते हैं। एनी कॉन्ट्रैक्टर इज हु इज विलिंग टू अंडरटेक द वर्क, request for finance requirement work for satisfactory is allowed to the submit of the offer, इससे रिलेटेड नहीं है। ओपन टेंडर से पब्लिक एडवर्टाइजमेंट और ओपन टेंडर से रिलेटेड नहीं है, सेकंड, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर सेकंड, A and R true but not the correct explanation of A. Any contractor who is willing to undertake the work and who is the request then equipment complete the work satisfactory is allowed to the submit of the offer. According to Indian Standard Specification 1180 से 1964 for outdoor type distribution transformer, tapping shall be provided on high voltage side. Tapping should be provided on high voltage side in 6 step, 5 step, 2 step, 3 step. Tapping should be provided on high voltage side. Remember. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 स्टेप। Tapping should be provided on high voltage at 5 step. Range shall be 2.5 plus 5%. IES specification for outdoor type distribution transformer, Indian Standard 1180 से 1964, स्टैंडर्ड रेटिंग 16, 25, 40, 50, 63, 80 और 100 kVA। नो लोड वोल्टेज रेशियो 3300/466,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following constitutes a valid reason for rejecting the lowest bid? लोवेस्ट जो बिड होती है, कॉन्ट्रैक्टर जो अप्लाई करते हैं उसको अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसके रीजन पूछ रहा है। बिडर हैज नॉट साइंड, सही बात है, अगर साइन नहीं किया तो रिजेक्ट कर सकते हैं। लेक ऑफ सफिशिएंट अपोजिशन, और अपोजिशन में सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारे लोगों ने आवेदन नहीं दिया, सफिशिएंट लोग नहीं लग रहे हैं, तो भी रिजेक्ट कर सकते हैं। अनरीजनेबल कंपनसेशन इज रिसीव्ड, अनरीजनेबल कंपनसेशन इज रिसीव्ड, तो अभी इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। रीजन फॉर लोएस्ट बिड फेलियर, not following the specification, not answering the question, not providing enough evidence, limiting experience, insufficient supporting evidence, not providing enough limiting experience, insufficient supporting evidence। तो आज का ये लेक्चर फर्स्ट था, आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। ये मेरा भी लेक्चर फर्स्ट था, आज मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया है, एंड आगे आगे मैं अपने आप को इम्प्रूव करते जाऊंगा। बट क्वेश्चन और कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आज टोटल 10 क्वेश्चन कराए हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के समथिंग अपन 150 से 200 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही टॉपिक सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट करके सारे सब्जेक्ट को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अपन कवर करते जाएंगे। ऑल कंप्लीट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कराऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। वैसे मैं बता दूं, बट छोड़ो, सिलेक्टेड हूँ नहीं हूँ क्या है, बट आप क्वेश्चन करिए और देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।